आजकल की जो फ़िल्में हैं, वो फ़िल्म मेकर्स बड़े प्लान ढंग से और सिस्टमैटिक ढंग से बना रहे हैं और काफ़ी फ़ास्ट बना रहे हैं। और उसका जैसे कि इसके अंदर ये राइट-अप में दिया भी हुआ है कि वो सारा जो है प्रॉपर ढंग से और वर्कशॉप्स करते हैं और रीडिंग्स विद द एक्टर्स बिफोर द फ़िल्म गोज़ ऑन फ्लोर दैट एंश्योर दैट दे डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द शूट इन एक्सप्लेनिंग व्हाट दे वांट, सेज कौशिक, who is also directed over 15 Hindi films. So this is a very healthy trend. What is needed is that scripts are still not realistic, and especially the the films, the action films, are still showing that the hero is unrealistically catching the criminals, and even the police is hero. So that some sort of more scripts are required which can trap the criminals in a slightly new way. And for this matter, please refer to the book on the Amazon KDP. The title is Word Book Series of Original Film Scripts Part 1. Word Book Series of Original Film Scripts Part 1. So it is having 16 film scripts with some summaries and stories, and even some songs are there, 14 songs, which are realistically placed for the various uh, the stories, some romantic songs and some other type of genres. So these 16 films are having the suspense, the action, the family, drama, which are realistically placed, and which does look like realistic, and gives some message to the current situations, corrections and in the society, corrections on the traffic, correction on the pollutions, correction on the law and order, how the criminals can really be trapped and the punished. There have been certain films on revenges, certain films on the actions of the police officers, and certain like um, that Amitabh Bachchan came as Superman, uh, who catches all the criminals. So even in the South Indian films, the things are not that realistic. The hero punches say 10 or 20 or 30 people, and they fly some 10 feet away. And there are hundreds of bullets being fired, hundreds of people are getting killed, but not a single bullet hits the hero. So this sort of a thing can entertain some of the viewers, and other viewers only for some time. So now the scripts need to be, you see, like the old type of films like Waqt, like Aankhein, like Kab Kyun and Kahan. So they had certain scripts which were a bit sort of a realistic. Like in the Kab Kyun and Kahan, how the Pran is threatening Babita. That is a sort of a realistic thing. Like in the Aankhein, they make a underground den and make the sort of arms and all those things there, and they plant that one old lady in the house of uh, one of the officers, and gets mm, the copy of the communications that Lalita Pawar was there. So these are the things which were being scripted in a realistic manner. So more such things are needed to be made, so that the people do not feel cheated. People don't feel that 80% of their time in the film goes waste, and they are only going to visit the PVRs and other things just for an entertainment, for a change of the avenues and the
of the scenic, of the air conditioning, and the eating out. So that sort of a thing should not be there, because the films today are being watched even on the web. So if more and more good scripts, films, action films, and some message giving good films are there by some of the producers, they will earn good name. There had been certain films which were having certain themes, like Tale Zameen Ke. So these these things were liked and appreciated. So if there is a good script, people will definitely like. If there is a good script writer, if there is a good filmmaker, so definitely he will get an edge over the others. So इस चीज़ का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. मैंने ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बोल दी हैं, थोड़ा हिंदी में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म ऐसी बनाई जाएं जिनमें स्क्रिप्ट जो है वो अच्छी हो, और जो सिर्फ एक हीरो जो है सबको 50 लोगों को मार देता है और हज़ारों गोलियां चल रही हैं और उसको एक भी नहीं लगती, और वो सब बाकी क्रिमिनल्स मर जाते हैं, और लास्ट में सडनली जो है पूरा सीन चलते चलते कोलैप्स हो जाता है, और जो जो डॉन है वो एकदम सडनली अकेला रह जाता है और पकड़ा जाता है, मार दिया जाता है. तो ये जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम तक एंटरटेन नहीं कर पाएंगी. तो अब आजकल वेब भी आ गया है, तो उसके ऊपर भी लोग देखना चाहेंगे कि कौन सा स्क्रिप्ट राइटर अच्छी स्क्रिप्ट दे रहे हैं, कौन से फिल्म मेकर अच्छी फिल्म बना रहे हैं. तो वो डेफिनेटली उनका औरों पे एक अच्छा एज बनेगा. तो मैंने जो सजेस्ट की है फिल्म, जो स्क्रिप्ट्स की एक बुक है, वर्ड बुक सीरीज़ ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट्स पार्ट 1, अमेजन KDP पे है. आप इसको गूगल में डालिए, आपको इसमें बुक आ जाएगी, और उसके अंदर 16 फिल्म्स की स्क्रिप्ट दी हुई हैं, जैसे कि द डेन, लाइक MS-370, दिस कुड हैपन टू द एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट गायब हो गया था. तो इसी तरह के और बहुत सारी इसमें सोशल फिल्म्स भी हैं, सोशल ड्रामाज हैं, और एक हो गया जैसे ऑटो वाला, और जैसे हो गया पानी पूरी वाला, ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं. और तो ये जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, और उसमें जैसे ट्रैफिक की, पॉल्यूशन की सॉल्यूशंस उन फिल्म में दिखाई गई हैं, क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ना है रियल ढंग से, और कैसे यदि कोई रिवेंज लेता है जिसको लॉ में जो समझता था कि भाई मुझे नहीं मिला, और वो जैसे क्रिमिनल्स को अपने तरीके से ये पनिशमेंट देता है, तो उसका भी एक रियलिस्ट ढंग से उसने डैन बनाया है. और उसने उसके लिए जो आर्मी अपनी जो फोर्स बनाई है वो, और जो है, और जो ऑर्फनेज में जाके वहाँ से 10-10 बच्चे सब ऑर्फनेज से लेके उनको ट्रेन किया है, उनको पढ़ाया है, लॉयर बनाया है, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाया है, बड़े बड़े ऑफिसर्स IAS बना दिए उसने, उनको गॉडफादर बन गया. वो इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़ा, खुद पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि क्रिमिनल जो हैं वो पॉलिटिशियंस की फॉर्म में, दूसरों की फॉर्म में, कुछ जो सारे ख़राब नहीं हैं, लेकिन जो ख़राब हैं वो लॉ से बच जाते हैं. तो उनको यदि पनिशमेंट देना है तो उनको कैसे ट्रैप करना है वो उसने अपने डैन में दिखाया है. एक अंडरग्राउंड डैन बनाया है, कैसे वो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ता है, कैसे उनको लाता है, और क्या उसका अपना पनिशमेंट देने का तरीका है. वो उनको मारता नहीं है, वो कहता है यू हैव टू कम्पनसेट द सोसाइटी. उनको एज ए ब्लड डोनर यूज़ करता है वो 10 साल 20 साल के लिए. उनके जो है बॉडी पार्ट जो है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसका डैन के ऊपर, उसके अंदर वो उस चैरिटेबल हॉस्पिटल के अंदर उनकी किडनी आईज वो यूज़ करता है, और उनको उस अंडरग्राउंड डैन के अंदर ही कैद करके रखता है क्रिमिनल्स को. वो गायब हो जाते हैं सोसाइटी से. बस सब जो ह्यूमन क्राइम मची हुई है कि बहुत सारे लोग गायब हो गए, पर वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं. कैसे वो गायब कराता है, किसका क्या शौक़ है, पैसे का शौक़, जिसको उसको पैसे के तरीके से वो अपने तो कैसीनोज में या किसी रेस्टोरेंट में बुला के ट्रैप कर लेता है. किसी को गर्ल्स का शौक़ है तो वो गर्ल्स का बेट दे के और उनके घरों में या जो है होटल रूम में बुला के उनको बेहोश करके कैसे भी अपना सिस्टम है एम्बुलेंस में डाल के एज ए पेशेंट, और कैसे वो अपने हॉस्पिटल में ले जाता है. तो ये सब चीज़ें इस टाइप की हैं जो कि उसने एक आइडियाज़ दिए हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो उनको कैसे, फिर रेड ट्रैप पॉलिसी कि रात के 2 बजे और ट्रैप डाला गया है कि लोग बाग जो है अपने फैमिलीज़ के साथ जाते हुए जो है न्यूली वेड कपल जाते हुए मोटरसाइकिल ख़राब हो गई तो क्रिमिनल्स आएंगे. तो वो ये दिखाया कि एक पुलिस वुमेन और जो बॉय है और वो जो है मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है और वो है पुलिस के, और आसपास जर्नलिस्ट भी छुपे हुए हैं, सब छुपे हुए हैं, PCR वैन छिपी हुई है, और ऑब्वियसली फिर वो गुंडे आएंगे जीप में और वो कैसे
आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे उनको पकड़ते हैं, टॉर्मेंट करते हैं, लड़की को छेड़ते हैं, और कैसे वो पकड़े जाते हैं। फिर वो कैसे कैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे निकलते हैं, या किसी किसी ये बड़े हाई अप्स के बच्चे निकलते हैं। और लेकिन वो इतना फुल प्रूफ केस बना है कि वो जो जजेस भी जो हैं वो उसके हैं अपने, जिसका से डॉन है वो ऑर्फनेज से आए हुए हैं। मतलब वो जजेस की फैमिलीज नहीं हैं, अकेले जज हैं, अकेले ऑफिसर्स हैं। इस टाइप के लोग उसने सोसाइटी में बिठा दिए हैं कि उसकी किसको तुम क्या तंग करोगे। जो क्रिमिनल्स उनकी पिक्चरों में दिखाते हैं, किसी की बेटी उठा ली, किसी की वाइफ के साथ कुछ कर दिया, बच्चे को उठा लिया, तो उसने सोसाइटीज़ में ऐसे लोग प्लान कर दिए हैं सिंसियर टाइप के, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। तो इस टाइप के उसने हज़ारों लोग जो है कंट्री के अंदर बिठा दिए हैं। और ऐसा अब डर फैल गया है कि कोई भी अगर क्राइम करेगा तो वो अगर इसके चंगुल में आ जाता है, उसके सीक्रेट लोग अंदर अंदर घूम रहे हैं। जैसे राजा पहले ज़माने में भेज बदल के घूमते थे, तो क्रिमिनल्स को ट्रैप कर रहे हैं। और फिर बाद में उसने और ऑफिस के अंदर भी जो लोग घूस खाते हैं, पैसे लेते हैं, लोगों के फायदे रोकते हैं, तंग करते हैं, वहाँ भी उसने जो है इन डिस्गाइज लोग भेजने शुरू कर दिए कि वहाँ भी जा के पकड़ेंगे उनको। तो इस टाइप की जो जो नए नए थीम्स हैं वो सोचने की ज़रूरत है। और इस टाइप की जब थीम बनेंगी तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से देखेंगे और ऐसे प्रोड्यूसर्स को, स्क्रिप्ट राइटर्स को अप्रिशिएट करेंगे। जैसे पुराने ज़माने की कई फिल्में, वो आज भी ब्लॉकबस्टर्स, आज भी लोग याद करते हैं संगम को, आज भी लोग याद करते हैं वक्त को, आज भी लोग याद करते हैं फिल्म आंखें को, पुराने हैं, आज भी याद करते हैं कब क्यों और कहाँ। तो ये जो पिक्चरें हैं, ये जो बनी हुई है, इसी टाइप की और बहुत हैं। तो लेकिन आजकल की बड़े दुख की बात है कि 100 में से 90 फिल्में जो हैं उसी टाइप की, स्टीरियो टाइप की बनती हैं, और उसके अंदर वही अल्टीमेटली एकदम से कोलैप्स हो जाता है और डॉन एकदम से पकड़ा जाता है, अकेला हीरो सबको मार देता है। तो वो कुछ इस ढंग से प्लान ढंग से करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग चीटिड फील ना करें। और जब वो थिएटर्स में जाएं तो ये उनको लगे कि कोई अच्छी चीज़ देखने जा रहे हैं, और वो ये नहीं कि थिएटर की सीट्स को एंजॉय करने जा रहे हैं या वहाँ पे कुछ अपना जो है एज एन आउटिंग जा रहे हैं, बल्कि एक अच्छी फिल्म भी एंजॉय कर रहे हैं। और अब जबकि जैसे मैंने कहा कि वेब का टाइम आ गया है, तो उसके ऊपर भी लोग उन्हीं डायरेक्टर्स की और जो है स्क्रिप्ट राइटर्स की ये फिल्म ज़्यादा देखेंगे। अब फिल्म जो है वेब पे सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं देखी जाएगी, बल्कि पूरे इट इज़ ए पूरा ग्लोब। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अब सोचने की ज़रूरत है, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि हमारी फिल्म का जो डोमेन है वो थिएटर्स में भी चलेगा और वेब पे भी चलेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर हमें करें। तो ये सतीश जी के व्यूज़ मुझे अच्छे लगे, जो उन्होंने फीडबैक दिया कि आजकल के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टाइम कॉन्शियस हैं और सिस्टमेटिक हैं। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। अगेन आई विल से कि जो स्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर जो बनी हुई हैं, वर्ल्ड बुक सीरीज ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट्स पार्ट 1। आई रिपीट, वर्ल्ड बुक सीरीज ऑफ ओरिजिनल फिल्म स्क्रिप्ट्स पार्ट 1। तो मैं अपना ईमेल दे देता हूँ फॉर एनी फर्दर डिटेल्स ऑन द फिल्म स्क्रिप्ट्स and more and more such filmy ideas which I have got with me, I can share. My email is skjainial@yahoo.co.in. Again I repeat, skjainial@yahoo.co.in. I am a script writer, registered in the SWA also, and more than that, I have been a passion for writing. I have got the ideas of making hundreds and hundreds of the films on various genres, various themes, which can make good novels, which can make good films, and on short notices these can be made. And as I said, now time has come when producers, the directors and the script writers have to think in terms of their films not being viewed only locally in a city or in a country, but globally. So with that, it's a mission, with that target the films need to be made. And for that purpose, another view I would like to share is that now time has come, film industry should really become an industry, industrial house. They should employ the various type of people rather than asking them as like on the work to work basis. No, employ them, give them the provident fund, give them the other facilities like any other industry, like Tata's and like Tisco, like BHEL, like so many other companies. They should also make the
the different film companies and employ people from A to Z, so that the people are also they know that up to this age they will be working like this. Up to beyond this age, after retirement, they will get the old say roles or the work, and after retirement, but this will be their fate. ऐसा नहीं होगा कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं अपने टाइम के अंदर उनको अच्छी अच्छी फिल्में मिली, बाद में नहीं मिली, बाद में उनका कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो वो बड़ा बुरा लगता है कि अच्छे अच्छे एक्टर्स, अच्छे अच्छे जो जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स और वो सब है उनकी बाद में फेट अच्छी नहीं होती। तो जब जब सारी बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और रिटायरमेंट का और रिटायरमेंट के बाद का और प्रोविज़न है और उनको जॉब्स दी जाती हैं, तो ये अभी भी ये जो पीसफुल बेसिस पे या डेली वेज वर्किंग ऑफ द एक्टर्स, ऑफ द स्टार्स, ऑफ द राइटर्स, ऑफ द प्रोड्यूसर जो है वो उसको कम करना चाहिए और इनको परमानेंट जॉब्स देनी चाहिए। और एक ज़रूर इस टाइप का ये बना लेना चाहिए कि जहाँ से मतलब एजेंट्स की तरह, कि जहाँ से आपको अगर एक्स्ट्रास चाहिए, एक्स्ट्रा जो आपने एम्प्लॉय किए उसके अलावा अगर वर्क फोर्स चाहिए, तो जैसे अभी जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनसे हम ले सकते हैं, तो वो अपने अपने रोल में रखते हैं, बट वो एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिलती है उनको, आप वहाँ से ले सकते हो, उस पूल से ले सकते हो। तो एक कॉमन पूल ऑफ आर्टिस्ट, एक्टर्स वो अलग से बने, वो उस पूल के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ से फिर जिसको ये चाहिए वो लें। और जो अलग अलग जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं वो अपना 100 आदमियों का, 200 आदमियों का, 500 आदमियों का एम्प्लॉयमेंट दें और उसको परमानेंट बनाएं। तो ये सब नीड ऑफ द आवर्स है। तो जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको अब आगे आना चाहिए और अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एक प्रॉपर शेप देने की ज़रूरत है, एंड विद कीपिंग इन एटलीस्ट 1 century in mind. Thank you very much.